Okay, hello everyone. Namaste Sabiko. Good evening to all of you. Today we are going to discuss about aboriginalism. তো আমরা এখানে অ্যাবরিজিনালিজম নিয়ে কথা বলবো হিন্দি বাংলা দুটোতেই হাফ হাফ করে প্লিজ ডু লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जुड़िए इस लिटरेचर के साथ অ্যাবরিজিনালিজম একটা ধারণা একটা কনসেপ্ট বা একটা পার্সপেক্টিভ একটা দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে আদিবাসী ইন্ডিজিনাস বা অ্যাবরিজিনাল জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি তাদের জীবনযাপন তাদের ইতিহাস এবং পরিচয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়। এটা মূলত সাহিত্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার পাশাপাশি কি অ্যাবরিজিনাল শব্দের অর্থ হলো আদিম বাসিন্দা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যেমন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবরিজিনাল পিপল, আমেরিকার নেটিভ আমেরিকানস, ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী। অ্যাবরিজিনালিজমের মেইন যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব। এখানে আদিবাসীদের ভাষা ধর্ম লোক সংস্কৃতি রীতিনীতি জীবনধারা গুরুত্ব পায়, যেমন লোকগান নৃত্য প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন ইত্যাদি। উপনিবেশবাদ বা কলোনিয়ালিজমের যদি আমরা সমালোচনা করা যায় সেটা হচ্ছে অ্যাবরিজিনালিজম প্রায় দেখায় কিভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়েছে, সংস্কৃতি নষ্ট করেছে, পরিচয় সংকটে ফেলেছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। পরিচয় বা আইডেন্টিটি ও স্বাতন্ত্র্য এটি আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। তার সাথে কি আমরা কারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। প্রাকৃতিক জীবনের সাথে সংযোগ, আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বন নদী পাহাড় তাদের জীবনের অংশ, তাই অ্যাবরিজিনালিজমে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শোষণ ও প্রতিরোধ রেসিস্ট্যান্স, এটি দেখায় কিভাবে আদিবাসীরা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। সাহিত্যে অ্যাবরিজিনালিজম হলো আদিবাসী লেখকদের লেখা অথবা তাদের জীবন নিয়ে লেখা সাহিত্য। এই সাহিত্যগুলো সাধারণত থাকে দুঃখ কষ্ট সাংস্কৃতিক সংকট সংগ্রাম ও প্রতিরোধ এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে। ভারতের প্রেক্ষাপটে অ্যাবরিজিনালিজম যেমন হলো গিয়ে ভারতে যেমন সাঁওতাল গোড় ভিল এই ধরনের কতগুলো প্রজাতি আছে, এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন সংস্কৃতি ভাষা এইসব নিয়ে আলোচনা করাই অ্যাবরিজিনালিজমের অংশ। যদি আমরা ইন শর্ট বলতে যাই সংক্ষেপে, অ্যাবরিজিনালিজম হলো আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ইতিহাস ও অধিকারকে কেন্দ্র করে একটি চিন্তাধারা যেখানে মূল লক্ষ্য তাদের পরিচয় রক্ষা করা, শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলা, সংস্কৃতির মূল্য বোঝানো। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু মেইনলি। তো এটাকেই আমরা এখন হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। বিফোর দ্যাট প্লিজ ডু লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए इस लिटरेचर के साथ। पहले हमने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को लेकर डिस्कस की थी, आज हम एबोरिजिनलिज्म को बारे में बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में भी ऐसे डिस्कस करेंगे बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। অবশ্যই এগুলো ইউজিসি নেট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপকামিং এক্সাম নেট সেট গেট বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जाम पिएचडी एंट्रेंस एटसेट्रा এসব एग्जामे লাগবে इंग्रेजी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एबोरिजिनलिज्म क्या है। एबोरिजिनलिज्म इज एक पर्सपेक्टिव है, एक आपका देखने का एक तरीका है। किसके लिए, किसके ऊपर? आदिवासी जो लोग होते हैं ना, हमने दलित लिटरेचर भी पढ़े थे, तो आदिवासी जो इंडिजिनस और एबोरिजिनल पीपल होते हैं उनके कल्चर उनके संस्कृति उनके लाइफ स्टाइल उनके जिंदगी का तौर तरीके उनके हिस्ट्री एंड उनके जो आइडेंटिटी है उनको जो आइडेंटिटी उसको फोकस करते हैं, उसके बेसिस पर बात करते हैं एबोरिजिनलिज्म। और ये मेनली लिटरेचर को कल्चर को हिस्ट्री को एंड सोशियोलॉजी को ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आपका एबोरिजिनल शब्द का जो अर्थ है वो है आदिवासी जनगोष्ठी, और यू कैन से आदिवासी इंसान जो लोग होते हैं उनके जो एक ग्रुप होते हैं उसको समझाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पीपल कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन नेटिव अमेरिकन को बोल सकते हैं। भारत के भी बहुत सारे आदिवासी है, आदिवासी ग्रुप पीपल है बहुत सारे। नेक्स्ट आपका ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आदिवासी कल्चर जो होती है, ये आदिवासी के जो लैंग्वेज होते हैं रिलीजन होते हैं उसके जो कल्चर होते हैं उसके जो फोक कल्चर होते हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके जो लाइफस्टाइल होता है इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं।
इसके ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट जैसे कि कोई कल्चर, कोई डांस, कोई नेचर के ऊपर निर्भर करके उनका जीवन जो वो लोग अतिवाहित करते हैं जीवन को, और जैसे कोई फोक सॉन्ग हो लाइक दैट। और अगर हम इससे रिलेटेड कोलोनियलिज्म से इसके बात करें तो ये एबोरिजिनलिज्म क्या करते हैं, यूरोपियन जो कोलोनियलिज्म है उसके जो आदिवासी है, उसके जो एबोरिजिनल पीपल जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो मिट्टी थे, वो जहां पर रहते थे, उनका जो वासस्थान थे, उनके जो लिविंग के जो प्लेस थे, जो मिट्टी थे जहां पे वो रहते थे, उसको कैसे उन लोगों ने छीन लिया इसके बारे में बात करते हैं। उनके जो कल्चर थे उसको कैसे उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया इसके ऊपर बात करते हैं। और उनके जो आइडेंटिटी है इसको कैसे क्राइसिस में लेकर आए हैं, ये सारे हम एबोरिजिनलिज्म कोलोनियलिज्म में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी क्या, ये आदिवासी का जो आइडेंटिटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, आइडेंटिटी है, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, एम्फासिस करते हैं, इसके ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट होते हैं कि वो लोग पूछते हैं हु आर दे, हु एम आई, आखिरकार हम है कौन, वो लोग है कौन, ये आदिवासी। नेक्स्ट अगर उनके लाइफ जो है नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, कैसे ये कनेक्ट है। आदिवासी पीपल जो होते हैं उनके प्रकृति के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, बहुत ही क्लोज वाला रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि वो लोग नदियां, पहाड़, फॉरेस्ट, उनके लाइफ इसी चीजों से जुड़ित रहते हैं, क्योंकि वो लोग नेचर के पत्ते, लीव्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं, खाना खाते हैं। हालांकि आदिवासी लोग, आपको भी पता है, आदिम मानव जो हम पढ़ते थे हिस्ट्री में, जैसे पहले लोगों का कोई कपड़ा वपड़ा नहीं थे, वो लोग कैसे डेवलप करते करते आज यहाँ तक आकर पहुंचे हैं। तो आदिवासी पीपल लाइक उनके पहाड़ों के साथ, नदियां के साथ, फॉरेस्ट ट्रीज के साथ, पौधों के साथ बहुत ज्यादा हम जैसे मम्मा पापा के साथ अटैच रहते हैं, वो लोग नेचर के साथ बहुत क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होते हैं कि वो लोग एबोरिजिनलिज्म के प्रकृति, नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसके, नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट उनके बारे में अगर शोषण जो करते हैं और उनके जो रेसिस्टेंस, इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि आदिवासी लोगों का जो हक की लड़ाई है उसके बारे में बात करते हैं, वो दिखाता है एबोरिजिनलिज्म को। ठीक है, और हम अगर लिटरेचर में एबोरिजिनलिज्म कहे तो उसको कहते हैं कि आदिवासी राइटर ने क्या लिखा। आदिवासी में भी तो राइटर होंगे, दलित लिटरेचर में हमने पढ़े थे, दलित राइटर को तो पढ़े थे, तो जैसे कि आदिवासी लोगों राइटर ने क्या लिखा, फिर उनके जिंदगी, उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी, उन लोगों के बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में लेकर कोई लिखा है उसको भी फोकस करता है ये एबोरिजिनल लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि ये लिटरेचर, ये जो साहित्य होते हैं एबोरिजिनलिज्म, ये दिखाता है उन लोगों का पेन, उन लोगों का सौरो, उन लोगों का दुख, उन लोगों का कल्चरल क्राइसिस, उन लोगों का टिके रहने का जो फाइट, लड़ाई, उसको शो करते हैं, और कैसे उसको खुद के ऊपर जब कोई आ जाता है उसको कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। अगर हम इसको हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एबोरिजिनलिज्म को, तो जैसे एग्जांपल है सांवताल, एक है फिर उसके गोर है, व्हील है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एबोरिजिनलिज्म। सांथाली भी हम पढ़ते हैं कुछ लैंग्वेज से, जिसे नेट का एग्जाम होते हैं, हमने सुने हैं। तो ऐसे ये आदिवासी जो ग्रुप के पीपल है, इनके लाइफ, इनके कल्चर, इनके लैंग्वेज, ये सारी चीजों के बारे में बात करने जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं एबोरिजिनलिज्म। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड अगर इन शॉर्ट, अगर इसको हम इसको सिंथेसाइज करके कहे तो एबोरिजिनलिज्म इज आदिवासी लाइफस्टाइल, आदिवासी कल्चर, आदिवासी हिस्ट्री, आदिवासी के जो हक के लड़ाई है, इस सारे जो पर्सपेक्टिव, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू, इनके जो थॉट प्रोसेस है, चिंतन है, इसके जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, ये सारे चीज और उनके जो आइडेंटिटी है इसको सेफ रखना, इनके आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, उसको सेफ रखो, और व्हाट इज देयर आइडेंटिटी, व्हाट आर देयर आइडेंटिटी, इसको सेफ रखना। उनके ऊपर जो अत्याचार, अन्याय हुआ है, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ है, उसके विरुद्ध में बात करना, और उनके जो कल्चर है, उनके कल्चर को समझना, उनके कल्चर के रूट को, उनके कल्चर के महत्व को समझना, ये होते हैं एबोरिजिनलिज्म। सो दैट्स इट, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एबोरिजिनलिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट टाइम
time we will discuss transcendentalism in Bengali and in Hindi also, and we already discussed theatre of absurd. So that's it for today. Thank you very much. Stay connected with this literature. Do like, comment, share and subscribe to this literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an update. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए, जुड़े रहिए इस literature के साथ। नতুन হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি যে সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথে অনুপ্রাণিত করতে, উদ্দীপিত করতে, উৎসাহিত করতে যুক্ত হতে হবে। आगामी दिने আমরা জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে একে অপরের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাব। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हम लोग साथ में मिलके आगे बढ़ पाए लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्रों में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।